Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति A warm welcome from the heart of Christ Church. हम हर एक का स्वागत हार्ट ऑफ क्राइस्ट की कलीसिया की ओर से करते हैं। And we hope that you all have been blessed. हम विश्वास करते हैं कि आप लोग सब आशीषित हैं We thank you for joining us online right now. और हम धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आप इसमें ये लाइव में शामिल है हमारे साथ। As we begin this service, जैसे हम आज की सभा की शुरुआत करते हैं, can you please turn to your Bibles from the book of Psalms? आइए हम भजन संगीता खोलेंगे। Psalms 130, 130 अध्याय beginning from verse 1 to 4. 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। Praise the Lord, you his servants. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised, both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. The Lord is exalted over all the nations, his glory above the heavens. भजन संगीता 113 1 से लेकर 4 तक। या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। Hallelujah. हालेलुया। How wonderful our God is. हमारा परमेश्वर कितना महान है। The word says that we need to exalt the Lord Almighty. और वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना चाहिए। Come on, church, let us look up to the Lord in prayer. आइए हम सब लोग साथ में परमेश्वर की ओर देखें। As we begin this worship and word, और जैसे आज की सभा की शुरुआत हम करते हैं, Lord, let us lead us into prayer. और परमेश्वर से मांगे, प्रभु हमें प्रार्थना में चलाइए And let the Spirit take total control और of our lives. आत्मा हमें पूरी तरह से कब्जा करे। Hallelujah, hallelujah. We thank you, Jesus, for this time you have given us. धन्यवाद यीशु, सुंदर समय जो आपने दिया। Lord, as your word says, praise the Lord, you his servants, praise the name of the Lord. और प्रभु जैसे हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर की स्तुति करो, हर एक सेवकों, हर एक जन परमेश्वर की स्तुति करो। Let our souls praise you, Almighty प्रभु God. हमारे प्राण आपकी स्तुति And करें। we thank you for this time you have given us. और इस सुंदर समय जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। You have blessed us and you have made this wonderful day. आपने हमें आशीषित किया, इस सुंदर दिन बनाया, उसके लिए धन्यवाद। And we also pray for the church, we pray for the church members. और आज की कलीसिया के लिए, आज की सभा, हर एक जन के लिए, Lord, you take total control of everything, Lord. हर एक चीज को आप संभालिए। You take total control of the logistics. प्रभु हर एक चीजों को संभालिए, You take total control of our families. हमारे परिवारों को, And let your name be glorified in and through our हर lives. एक चीजों में हमारे जीवन द्वारा आपके नाम की And we महिमा। thank you for all the wonderful things you have blessed in our और lives. जो कुछ भी चीजों से आपने हमें आशीषित किया उसके लिए धन्यवाद। Lord, you lead us in your spirit, oh Father God. आत्मा में हमें चलाइए प्रभु, And let us glorify you in everything we do, जो Father. कुछ भी हम करते हैं उसमें आपके नाम की महिमा हो। We keep this service into your precious hands. ये पूरे सर्विस को, सभा को हम आपके हाथ में देते हैं। And you take total control of our lives. आप हमें पूरी तरह से And चलाइए, let your name be glorified in and through our आपके lives. नाम की महिमा In हो। the name of Jesus we humbly pray. यीशु मसीह के नाम से मांग। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Church, are you all excited? क्या आप उत्साहित है? As the worship team is going to lead us, let us worship the Lord in truth and in spirit. आए जैसे आराधकों में चलाएंगे आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए। And I'm sure that we all are excited by worshiping the Lord. मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब उत्साहित है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हालेलुया। उत्साह के साथ ताली बजाते हुए हम यीशु का नाम ऊंचा उठाएंगे।
और यीशु का नाम हम जय जयकार करेंगे। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे, सब मिलकर हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा तुझे याद करूंगा। हालेलुया उत्साह के साथ हम गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। आमेन। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग का सिंहासन एक साथ मिलकर स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करे सब मिलकर। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, हालेलुया, आपके बाजू वाले को कहो हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। Tell the person near you, how big is your God? हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। उनको पूछिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा है हमारा परमेश्वर, कितना बड़ा है। एक बार एक लड़के ने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है, आप जरा बताइए मुझे, आई डोंट नो हाउ बिग इज माय गॉड। तुरंत वो पिताजी क्या बोलते हैं अपने बेटे को, बाहर आ जाओ, घर के बाहर आओ। और वो बेटा जो है वो पिताजी के साथ घर के बाहर जाते हैं। He goes out of the house and the father tells the son, look at the sky. वो पिताजी क्या बोलते हैं, आसमान को देखो, वहां एक एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है, एक जहाज उड़ रहा है। तुरंत देखते ही वो बेटा कहता है हाँ उड़ रहा है। तो पिताजी पूछ रहे हैं कि ये जहाज का साइज क्या है, एरोप्लेन का साइज क्या है। तो बेटा बोलता है इट इज वेरी स्मॉल। तो पिताजी बोलते हैं यू आर राइट, इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है वो। और उसके बाद
एक जहाज जब खड़ा है नीचे जमीन में, एक एरोप्लेन नीचे खड़ा है, तुरंत वो पिताजी उसके बाजू में जाके उस बेटे को पूछते हैं कि अभी बताओ ये जहाज कितना बड़ा है। तो वो बेटा he goes near the aeroplane and he sees it and he says, इतना बड़ा है, the aeroplane is so big. और then the father says, जब हम ये एरोप्लेन के बाजू आते हैं तब पता चलता है कि वो कितना बड़ा है। जब हम दूर है तो हमें बहुत छोटा लगता है। वैसे ही तेरा परमेश्वर भी है, कितना हम उनके करीब है तब हम जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। लेकिन कब हम उनसे दूर है हमें उतना ही लगेगा कि हमारा परमेश्वर इतना ही कर सकते हैं, बहुत इतना ही कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है, इफ यू नो दैट, इसका मतलब है आप बहुत करीब है आपके परमेश्वर के। हालेलुया। ऐसे कोई परेशानियां नहीं है जो हमारे परमेश्वर उसको मिटा नहीं सकता। हमारा परमेश्वर उतना महान है। अभी अपने बाजू वाले को देखकर कहो कि मुझे पता है मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है, मुझे पता है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। Our God is very big. Let's get more closer to Him to know how big our God is. और भी करीब जाएंगे हमारे परमेश्वर के, ताकि हम जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। हर आराधना की योग्य हमारा परमेश्वर है, because He is a big God. वो ऐसे ही छोटे परमेश्वर नहीं, लेकिन बहुत ही महान है। So let's today take a decision and say, Lord, I want to get closer to you to know how big you are. Because if I'm far, I know how small you will be, Lord Father. Let me get more closer to you, Lord Jesus. और भी आपके करीब आने के लिए हमें मदद कीजिए, ताकि हम जाने कि आप कितने महान हैं प्रभु। आइए सब लोग अपने मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जीसस, हालेलुया। जीसस, आमीन। आज ऐसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। हमारा परमेश्वर महान है, बड़ा है, सेनाओं का भी यहोवा है वो। हालेलुया। He is a big God. Bible says He is the Lord of hosts. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। जैसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर यीशु के चेहरे को खोजेंगे। बाइबल में लिखा है कि तू परमेश्वर टूटे हुए मन के करीब आता है। The Bible says He is close to the broken-hearted and to such that have a contrite spirit. आज भी जैसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई में उनकी आराधना करें। जिस गाना, म्यूजिक बजाना, इसमें से आराधना नहीं होता है। कल भी हम एक छत्तीसगढ़ में हम सेवकाई कर रहे थे जो लाइव पर, तो परमेश्वर की कृपा से जैसे हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, एक चीज हमें समझना है कि परमेश्वर यीशु बहुत बड़ा है। जैसे सिस्टर ने कहा, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। और जो भी यीशु के पास आए थे, वो सब परमेश्वर यीशु के पास घुटने पर आकर, उनके चरणों में आकर गिर के पड़ते और कहते, यीशु हमारे लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर अस लॉर्ड जीसस। और बाइबल में ये भी लिखा है कि यीशु सबको चंगाई के, सबको छुटकारा दे, क्योंकि वो कभी पार्शियलिटी ऐसे दिखाते नहीं है। जब हम जानेंगे हम किसके पास आए हैं, वो कितना बड़ा परमेश्वर है, तो हम उनसे कुछ पा सकते हैं। पुराने नियम में जो फरीसी लोग थे और नए नियम में जब यीशु आने के बाद जो फरीसी लोग थे, वो लोग यीशु के पास आकर यीशु को सिर्फ प्रश्न करने के लिए आते थे, क्योंकि वो जानते थे, वो सोचते थे कि हम परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का जो आज्ञा है हम जानते हैं, हम शास्त्र को जानते हैं, हम वचन को जानते हैं। ये यीशु कौन है हमें आके ये प्रचार करने के लिए? ये यीशु कौन है जो हमें वचन का जो ज्ञान दे रहे हैं? जब वो लोग अपने आप से भरकर यीशु के पास आते थे, तो वो जान नहीं पाए कि यीशु कितना बड़ा है। जब when you are filled with yourself, when you are filled with your own thoughts, जब आप अपने सोच से भरे हैं, जब अपने विचारों से भरे हैं, जब अपने प्रकटीकरण से भरे हैं, तो कभी हम जानेंगे नहीं कि प्रभु कितना बड़ा है। इसके लिए बाइबल में लिखा है, जो भी फरीसी है, सदूसी है, जो भी स्क्राइब्स है, यीशु के पास आए, वो उद्धार कभी नहीं पाए। They did not receive salvation because they did not come to receive salvation. वो उद्धार पाने के लिए यीशु के पास नहीं आए, वो यीशु को प्रश्न करने के लिए आए थे, वो यीशु को परखने के लिए आए थे। तो इसके लिए परमेश्वर यीशु का बड़ापन, उनका जो भलाई है, उनका जो कृपा है, उन पर नहीं आई। बाइबल में लिखा है कि यीशु के पास 12 चेले के अलावा बहुत सारे चेले थे। He had many disciples apart from the 12 disciples.
और जब यीशु ने बहुत बड़ा प्रचार किया कि मैं जीवन का रोटी हूँ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, यीशु ने कहा तुम मेरे लहू को पियो, तो उस लोगों को समझ नहीं आई। बाइबल में लिखा है कि वो लोग बोल रहे थे कि यीशु का जो प्रचार है बहुत कठोर है, बहुत कठिन है, हमें समझ नहीं आ रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड हिज प्रीचिंग। और बाइबल में लिखा है कि उस दिन बहुत सारे चेले यीशु को छोड़कर चले गए, बहुत सारे चेले यीशु को छोड़कर चले गए। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आता है तो परमेश्वर ने जिसको चुना है वो ही उस वचन को समझ सकता है। और जब सब लोग चले गए, यीशु 12 को देखकर मुड़कर कहते हैं कि क्या तुम लोग भी जा रहे हो? तो पतरस वहां से कहता है कि प्रभु हम कहां जाएंगे, जीवन का वचन आपके पास है। हालेलुया। Where will we go, Lord? You have the word of life and we have come to know, और हमने जान लिया है कि आप परमेश्वर के मसीह हैं। We have come to know that you are the Messiah, the Son of the living God। जब फरीसी, सदूसी और ये सब लोग यीशु के पास आते थे, उनको वो प्रकटीकरण नहीं मिली कि यीशु मसीह खुदा है, कि यीशु मसीह मसीहा है, कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पर जब यीशु मसीह अपने लोगों के पास आए हैं, यीशु कहते हैं कि क्या मैंने तुम लोगों को नहीं चुना? I have chosen you. I am the one who has chosen you। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें कृपा मिलती है, दया मिलती है, उनका अनुग्रह मिलता है। जब हम जानेंगे कि हम कुछ नहीं है पर वो सब कुछ है। हालेलुया। आज भी जैसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। प्रभु बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, प्रभु हम चुने हुए लोग के बीच में रहना चाहते हैं। We want to be among those who are chosen, Daddy, among those who are called by your name, who are set apart from this world। ये दुनिया से जो अलग किए गए लोग हैं, हम उसमें बनना चाहते हैं। प्रभु I want to be among those people, Daddy। आज भी हम कलीसिया होकर जैसे परमेश्वर को पुकारते हैं, उनकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उनको पुकारें ताकि वो कार्य करें। आमीन। जीसस सेज क्या मैंने तुम लोग को चुना नहीं है? और जब फरीसी सदूसी लोग बोलते हैं कि प्रभु हम भी आपको जानना चाहते हैं, प्रभु कहते हैं कि मेरा पिता चुनता है। सब लोगों को परमेश्वर ने पुकारा नहीं है, सब लोगों को परमेश्वर ने चुना भी नहीं है, पर अगर आप परमेश्वर के चुने हुए लोग में हैं तो हम अपने आप को नम्र करेंगे और परमेश्वर को जानेंगे वो कितना बड़ा परमेश्वर है। How big our God is। Let's all close our eyes and look up to Jesus। सभी आंखें बंद करके यीशु की ओर देखेंगे हम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus। Thank you Daddy। Thank you Daddy। Thank you Jesus। Hallelujah। Thank you Jesus। Hallelujah।
खुदा है, दयालु परमेश्वर है, प्रेमी पिता है। आज भी आपके प्रेम से हमारे हृदय को भर दीजिए यीशु, आपकी कृपा और दया हम पर आने दीजिए प्रभु। प्रभु आपने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। My grace is sufficient for you। उस पापी स्त्री को जब वो लोग ने आपके चरणों में लाया, प्रभु उसको दोष ठहराते हुए लाया। When they brought that sinful woman at your feet, Father, to condemn her, आपने अपना अनुग्रह दिखाया, दया दिखाया। हालेलुया। आज भी जो भी आपके चरणों में आए हैं यीशु, उन पर प्रभु दंड नहीं परंतु कृपा और दया दिखाई यीशु। We pray that all those who have come to your feet, Father, today, that your grace will be sufficient for them today. Let your grace come upon their lives। यीशु ने उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुम्हें दोष नहीं ठहराया? वो कहती, नहीं प्रभु, किसी ने भी नहीं। और यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, जाओ वापस पाप मत करना। हालेलुया। आपका अनुग्रह माफी से पहले था यीशु, आपका कृपा, आपका दया हमारे लिए काफी है यीशु। आज भी जो यीशु के चरण में आए हैं, छुटकारा पाए, आनंद पाए, शांति पाए, समाधान पाए यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus, all those, Lord Father, who have come to your feet today, let your grace be sufficient for their lives, Lord. Lift them up, Daddy. Give them a new heart, new hope, a new vision, that they might stand again for you, that they might come back to you, that they might serve you in truth and in spirit. Hallelujah. This is my story. This is my song. यही मेरी कहानी है प्रभु, यही मेरी गीत है प्रभु, कि दिन रात मैं आपकी आराधना करूंगा, दिन रात आपकी स्तुति करूंगा प्रभु, क्योंकि आप योग्य हैं। हमारे पास और कोई कहानी नहीं है प्रभु पिता। We have no other story than to worship you, than to come into your holy presence and to serve you with all of our heart, soul, mind and strength। Hallelujah, 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 hallelujah। आवाज उठाकर, कलीसिया आवाज उठाकर, come on, lift your voices church, lift your voices। Hallelujah, hallelujah। We praise you Daddy, we love you Lord Jesus, we praise your holy name Father। Hallelujah, hallelujah। We give you the glory Daddy, we give you the glory। I आखिरी बार we'll sing this along। This is my story Daddy, this is my song। I want to praise you Lord Jesus। हम आपकी स्तुति आराधना करेंगे अनंत काल तक प्रभु यीशु। हमें मदद कीजिए, हमारी कमजोरी में आपका बल हमें वो सामर्थ्य दे ताकि अंत तक आपकी आराधना हम करें प्रभु। We thank you Jesus। हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं। आने वाले दिनों में अद्भुत कार्य आप करने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद यीशु। आज आपकी योजना के अनुसार जो कोई ये लाइव स्ट्रीम में शामिल है, हमारी कलीसिया के हर एक जन और जो कोई जन इसमें शामिल है यीशु, हमारे को आपके हाथ में देते हैं। इस लाइव स्ट्रीम के द्वारा उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक जन जाने कि आप कितने महान हैं और आप क्या कर सकते हैं उनके जीवन में यीशु। सारी स्तुति महिमा प्रशंसा हम केवल यीशु नाम को देते हैं। गवाहियों से
आपके लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए यीशु। जैसे वचन को भी सुनेंगे आप मांगते हैं, वचन अनुसार जीने के लिए हर एक को मदद कीजिए। आपकी सेवा को ढक के आप उनके द्वारा हमसे बात कीजिए। सारी स्तुति महिमा प्रशंसा गौरव हम केवल यीशु नाम को देते हैं। यीशु मसीह की पवित्र अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। आई जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है। आमेन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। We thank you for joining along with us this Sunday morning. इस रविवार की सुबह आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कलीसिया के साथ। प्रभु आपको जरूर आशीष करेगा। हालेलुया। जैसे आप यहाँ जुड़ रहे हैं, कृपया ये वीडियो को अपनी फैमिलीज और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आशीषित रहे। हालेलुया। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, whatever you need a prayer request, कृपया अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए so that we'll pray for you at the end of the service. आमेन। अपना बाइबल लेके तैयार रहे, जैसे पासवान आपके लिए अभी वचन लेके आ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम से आप सबको हम आशीष देता हूँ। I bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर भलाई करने वाले परमेश्वर है। God is a God who does good things. आशीष देने वाला परमेश्वर है। He's a God who blesses us. आज के दिन जो परमेश्वर आप सबको आशीष देने वाला है। Today God is going to bless you. बहुत जन पवित्र वचन सुन के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके मसीह में आता है। Many people believe in the Lord as they hear the word, और पवित्र आत्मा भी पाता है। and they also are filled by the Holy लेकिन Spirit. कोई पीछे मुड़ के जाना है। But some people turn back. ये पीछे मुड़ के जाने वाले के बारे में प्रभु जो बता रहा है। And what does God talk about those who backslide? जीवन में कभी समस्या आएगा, कभी तकलीफ आएगा, कुछ रुकावट आएगा और अपने मर्जी से कोई काम नहीं होता तो वो पीछे मुड़ के जा रहा है। Many people come to the Lord, but once the things that they desire don't come to pass, they immediately leave the Lord. बहुत जन पहले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद एकदम आनंद के साथ आता है, एकदम खुशी के साथ आता है। When people believe in the Lord, very happily and excited they receive the Lord. और जो उसकी बात में उनका मन धीरे कम होते रहता है। And after that, slowly they start stopping to believe in the Lord. आज बहुत जन तो आप दुनिया में देख सकते हैं। Today many people you can see in this world. बहुत जन परमेश्वर का काम करने वाला भी है, वो भी पीछे मुड़ के जा रहा है। There are many people who serve the Lord and have backslidden. बहुत जन परमेश्वर का वचन सुन रहा है, फिर भी वो पीछे मुड़ के जा रहा है। Many have heard the word of God and they backslide. तो हम वचन में पढ़ेंगे Hebrew chapter 6 verse 4। इब्रानियों की किताब 6 अध्याय वचन 4। For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Verse 6, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. 4 to 6. क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, ये वचन में जो लिखा है, जो यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करके उसके नाम से बपतिस्मा लेता है, उसका वचन सुन रहा है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके विश्वास करते हैं। The word says that those who believe and receive the Lord have taken baptism and believe in the Lord, और पवित्र आत्मा को भी पा देता है। and they have even have been filled by the Holy Spirit. और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। तो स्वर्गीय वरदान मतलब परमेश्वर का आशीष भी पाने के बाद में भी वो क्या करता है? In spite of having been tasting the heavenly gifts, what do they do? परमेश्वर के उत्तम वचन का
और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं, ये परमेश्वर का बारे में, परमेश्वर का प्रेम के बारे में जानते हैं, परमेश्वर का प्रेम को स्वीकार करते हैं, फिर भी पीछे मुड़ के जा रहे हैं। Verse 6 says that in spite of receiving the Lord, in spite having been tasting the good things from the Lord, in spite of being blessed by the Lord, they have turned away from God. यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। एक बार जो अपने पापों को परमेश्वर के पास आके माफी मांगे, क्षमा किया और परमेश्वर ने उनको पापों को शुद्ध कर दिया, छुटकारा दे दिया, उसके बाद वो वापस वो मुड़ के जा रहे हैं। After receiving forgiveness from God, after receiving a new life from God, again they have turned away from God. इस तरफ जो वचन में जो लिखा है, ये एक बार पीछे मुड़ के जाने वाले हैं, वापस आना बहुत मुश्किल है। The Bible says that once they have turned away from God, they have received God. After that, when they turn again backslidden from God, it's very impossible to bring them back in the presence of God. वो किसी के बारे में बात सुनेगा नहीं है। They are not going to listen to anybody. उसके बारे में, वचन के बारे में बताए तो वो बोलेगा हमें सब मालूम है, तुम्हें मालूम नहीं है, ऐसे करके उल्टा जवाब देंगे। If you tell them about the word, they'll say, I know everything, and in fact, they'll back answer you. परमेश्वर के वचन में इस तरफ जो लिखा है तो वो बोलेंगे हमें परमेश्वर का वचन इस तरफ लिखा करके दूसरे बात करेंगे। And they will say, if you tell them this is what the word of God tells you, they will say, no, this is what the word of God tells you. इसके लिए जो वचन में जो लिखा है, इस तरफ जो इंसान को, इस तरफ जो चलने वाले को बदलने के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। That is why the Bible says it is impossible to save those who have turned again away from God. हमें क्या करना है मेरे प्रिय? परमेश्वर का वचन को सुन के परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। What should we do, my beloved ones? We need to listen to the word of God and obey it. अब आप दुनिया में आप जो रहते हैं, आप विश्वासी बन गए, प्रभु को धन्यवाद है। If you have believed in the Lord and received the Lord, then praise God. आप बताएंगे तो सही बताएंगे, दूसरे जातियों लोग अपने अपने परमेश्वर के ऊपर कितने प्रेम करता है, लेकिन हम उस तरफ से ओल्ड में प्रेम नहीं करते। We have seen that many people of the other faiths also, how strong they have in the Lord, in their faith, but we many times don't remain as what the Lord expects from us. हम अपने परमेश्वर को एकदम इजीली समझते हैं। We consider God very casually. परमेश्वर का काम के लिए एकदम इजीली समझता है। And we consider His works very casually. हमारा परमेश्वर इतने ऊंचा परमेश्वर, उतना सच्चा परमेश्वर करके जान के भी उसके बारे में एकदम इजीली समझते हैं। In spite of knowing that our God is a true God, we consider His ways very easily. आप ये मालूम होना चाहिए, एक पापी को क्षमा करने का जो काम जो है सादा काम नहीं है। You should understand it is not a small thing to forgive a sinner. वो जन अलग अलग तरीके से पापों के प्रायश्चित करते हैं, लेकिन पापों की क्षमा मिलता नहीं है। Many people try to get forgiveness for their sins in different ways. They try different directions and different ways to get forgiveness for their sins. परमेश्वर ने अपने लहू बहा के हम सबको पर प्रेम करके उन्होंने अपने जीवन दे के हमें बचा दिया है। And God has poured out His love for us. He's died on the cross and poured out His blood for us so that we will be forgiven. हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें इसलिए नहीं लेना है। So we shouldn't take the word of God very lightly. और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कोई बात किया तो वो करके दिखाएंगे। And if God has spoken something for you, definitely He'll make it come to pass. उसके लिए इंतजार करना है। We have to wait. अगर उसके बारे में उसके खिलाफ जो बैक आंसर नहीं देना है। We shouldn't back answer the word of God. अभी आप जब समझ लीजिए, वर्ष 11 लिखा है, And we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end. पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। अंत तक अपने आशाएं प्रयत्न करके रहना है। The word says that till the end, hold on diligently for the full assurance of hope. परमेश्वर जो बात किया तो सही काम करके दिखाने वाला है। If God has told you something, He will definitely do it in the right way. Verse 14. Say, surely, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you.
मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। ये जो अब्राहम के बारे में परमेश्वर जो बताता है, क्योंकि उन्होंने जो वादा जो किया, मैं तुम्हें आशीष करके तुम्हें बड़ा बड़ा बनाएंगे करके जो वादा किया था, This is about a promise that God has spoken to Abraham, that I will bless you and make you into a big, और greater nation. और अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया है और उनके विश्वास के ऊपर परमेश्वर ने आदर किया है। And because Abraham had believed in the word of God, God honored it and blessed it. अब क्या करना है मेरे प्रियो? परमेश्वर के कार्य में पहले स्थान देना है। What should you do, beloved ones? You need to give the first place to God. आपको हर चीजों से परमेश्वर को पहला स्थान देना है। You need to give the first priority to God. आपको परिवार में आपको पत्नी से ज्यादा परमेश्वर को प्रेम करना है। In your family, even before your wife or your husband, you need to keep God first. आपको पति से ज्यादा परमेश्वर को पहला प्रेम देना है। Before you need to give the first love to God even before your husband. अपनी माता पिता से ज्यादा परमेश्वर को हमें प्रेम करना है। Love the Lord more than what you love your parents. और अपने बच्चों से ज्यादा हमारा परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना है। Love the Lord more than what you love your children. अगर आप इस तरफ से परमेश्वर के ऊपर पहले स्थान देने समय में परमेश्वर हर बातों में तुमको पहले स्थान देंगे। If you give God the first place in your life, God will give you the first place. अब संडे का आराधने के लिए जो आप तैयारी करने के लिए आपको मन पूरा तैयारी रख के बैठना पड़ता है। Whenever you come for the Sunday service, you need to prepare your heart and your mind and come forward. आपको इंतजार करना है परमेश्वर का साथ में परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। परमेश्वर के सामने में बैठना पड़ता है। You need to patiently and hopefully wait in the presence of God. बहुत जन क्या बताएंगे? नेटवर्क नहीं है। Many people say there's no network. नेटवर्क होने के बाद में भी वो बताएंगे नेटवर्क नहीं है करके बहाना बताता है। Sometimes even if they have network, they'll give some excuses saying, no, I didn't have network. वो जन बोले हमें तबीयत ठीक नहीं है। Some people say, I was not feeling well. अच्छा हेल्थ होने के बाद में भी वो उस तरह जवाब देंगे। In spite of having good health, they will say such आपको ये excuses. देखना है वो जन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तड़प रहा है अभी भी। You need to understand there are many people who are longing to hear the word of God. वो जगह में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए जो इंसान तड़प रहा है, ढूंढ रहा है। There are many people who are longing to worship the Lord and to hear His word. आज परमेश्वर ने जो नेटवर्क मोबाइल के द्वारा हर जन को मतलब उनके साथ में स्तुति आराधना करने के लिए और वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। And today the Lord has been gracious that even through a mobile phone you can still stay connected to hear the word of God. उसके लिए हमें इंतजार करना है, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है। So wait patiently but do not neglect this opportunity. अगर हम परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के बारे में हम नेगलेक्ट करेंगे, परमेश्वर हमें नेगलेक्ट करेंगे, हमारे संतान की भी नेगलेक्ट करेंगे। If we take the things of God very casually and neglect Him, He will also neglect you. इसका बारे में परमेश्वर लिखा है। This is what the word has already. मेरे प्रियो परमेश्वर के बारे में आप एकदम साधारण नहीं समझना है। You should not take the word of God casually. परमेश्वर प्रेम के परमेश्वर है। He is a God who is a loving God. वो प्रेम के सागर है। He is a fountain of love. लेकिन उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है। हमें उनके सामने खड़ा रहने की हमारे पास ताकत नहीं होती। But He is also a God who gets angry. आप ये समझते हैं कि अगर आप कोई पाप किया तो किसी का गलती किया तो उसके सामने खड़ा रहने के लिए आपके पास ताकत है? If you have done wrong against somebody, will you have the guts to stand in front of them? तो आप ये समझ लीजिए कोई बड़ा पाप किया होंगे लेकिन परमेश्वर के सामने खड़ा रह के आप बात करने के लिए आपके पास ताकत है? So you should think if you would have sinned against God, are you worthy to stand in front of a big अगर कोई God? इंसान ऐसा कुछ हाथ में कोई तलवार है कुछ भी लेके खड़ा है उनके पास जाके तो आप उनके खिलाफ आप काम किया है उनके पास जाके खड़ा रह के आप उनके पास बात करेंगे? If someone is armed with weapons and is a very fiery person and you have done something against that person, are you having the guts? Do you have the guts to stand in front of such a person? क्यों? क्योंकि उनसे आप डरते हैं।
Why you'll not be ready? Because you will be afraid उनके of him. सामने खड़ा रह के बात करनी हमारे हमारे पास ताकत नहीं है, क्योंकि हम डर जाता है उनके सामने खड़ा रहने के लिए। You will not have the guts to stand in front of such a person. इतनी बड़ी परमेश्वर के सामने हम झूठ बोलते हैं, बहुत जन But very casually, many people lie in front of God. झूठ नहीं बोलना है, You shouldn't lie. हमें परमेश्वर से माफी मांगना है, परमेश्वर के वचन सुनना है, परमेश्वर का आगे पालन करना है। You need to confess your sins and apologize to the Lord and serve Him diligently. वचन में पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 29 वचन में 11 वचन पढ़ेंगे। 2 Chronicle chapter 29 verse 11। My sons, do not be negligent now, for the Lord has chosen you to stand before Him, to serve Him, and that you should minister to Him and burn incense. हे मेरे बेटों, दिलाई न करो। देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम ही को चुन लिया है। परमेश्वर ने तुम्हें चुना हुआ है उनकी सेवा करने के लिए। The Lord has chosen you to serve Him. उनसे स्तुति करने के लिए तुम्हें बुलाया है He's called you to worship Him. और उनके सामने खड़ा रहने के लिए बुलाया है। He's called you to stand in front of Him. और परमेश्वर ने इतनी सारी दुनिया में क्यों तुम्हें बुला दिया? In the midst of so many billions of people in this world, why has He chosen you? क्यों दूसरे के नहीं बुलाया है? Why hasn't He called somebody else? परमेश्वर तुम्हारे पास प्रेम करता है, तुम इसके लिए तुमको बुला रहा है। Because He loves you, He's called you. एक बेटे के ऊपर पिताजी बार-बार उनके पास जो बुलाता है तो उसके कारण उनके ऊपर प्रेम करते हैं। If a father keeps on calling his son, it's because he loves him. अगर वो बेटा ने उनका बात नहीं सुनता तो वो फादर नफरत करता है उनके ऊपर। And if the son does not listen to a father, the father will be upset with the son. लेकिन हमारा परमेश्वर नफरत नहीं करता, फिर भी बार-बार अपने बेटे को बुला रहा है, मेरे बेटे तुम आ जा करके। But our God is more loving than an earthly man. That is why He keeps calling you and out of love. इसलिए जो परमेश्वर ने जो 11 वचन जो लिखा है, तुम ये एकदम इजीली नहीं समझता है। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रेम करके तुम्हें जीवन में आशीष देने के लिए, उनके सामने खड़ा रहने के लिए तुम्हें बुला रहा है। That is why this verse says that God loves you. That is the reason He calls you and He wants you to be present in His presence. अपने जो काम है, जो काम परमेश्वर ने दिया है, उसको आपको काम करना पड़ेगा। Whatever work the Lord has given you, you need to do it diligently. आपके जीवन में कभी जो फेलियर होगा तो आपको फेल पे से पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? So even if you face some challenges, you need to not stop there, but you need to move forward. तो क्या करना है? आप जो क्षेत्र में आप जो काम करते हैं, उसमें उन्नति मिलने के लिए, उतने सफलता मिलने के लिए, उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। So what do you need to do to get successful? You need to move forward. अगर आप काम बराबर नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। And if you fail to work diligently, you will not be successful. अपने परमेश्वर ये नहीं बताया तुम चुपचाप बैठो मैं तुम्हें आशीष करेंगे करके, परमेश्वर कभी नहीं बताया। God has never asked you to sit quietly and I will bless you. परमेश्वर जो ये कहते हैं तुम अपने काम करो, मेहनत करो, मैं तुम्हें आशीष करेंगे। He says you work diligently and I will bless you. हम नीति वचन में 6 अध्याय 9 पढ़ेंगे। Proverbs chapter 6 verse 9। How long will you slumber, O sluggard? When will you rise from your sleep? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? बता रहा है तुम कब तक सोते रहेंगे। कोई इंसान क्या करता है, दिन रात सोते रहता है, काम करने के लिए उनको मन नहीं लगता है। The word says that how long will you sleep? There are so many people who are not willing to work, but they always love to sleep. हर पल वो लेजी हो जाता है। They become very lazy. तो इसके लिए जो बारे में जो बता रहा है, तुम कब तक तुम सोते रहेंगे? That is why the word is asking, God is asking, how long will you keep sleeping? परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो काम जो दिया तुमको करना जरूरी है। Whatever work the Lord has given you, you need to work. अगर आप छोटी सी काम करो तो बड़ा काम करो।
be it a small job or a big वो one. काम तो आपको करना पड़ेगा। You have to do your work. अगर आप काम करने समय में परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। And when you work, He will bless the work of your hands. अगर जो कोई बच्चा जो है स्कूल में जो कॉलेज में जो पढ़ता है, पढ़ने के समय में वो पढ़ना जरूरी है। If there's a student in college, there is a time that he has to spend time to study. अगर तुम पढ़ने के समय में तुम दूसरा कुछ काम करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो बाद में तुमको पढ़ने की मौका नहीं मिलेगी। If you waste your time instead of studying, you keep wasting time by playing around, then you will lose that hour that you got. इस तरह से तुम जो काम करने के जो समय जो मिल रहा है, मौका मिल रहा है, उसी समय में अपने काम करना जरूरी है। So the time that you get to work, you need to work at that very moment. बाद में उस तरह से काम भी कभी नहीं मिलेंगे। Otherwise, you won't get even that job. ये जो वचन में जो लिखा है, तुम तब तक तुम सोते रहेंगे। The verse is saying, how long will you be sleeping? Verse 10. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। ये किस तरह आप भी कभी बोलते होंगे, You also might be speaking about it. हाँ थोड़ा सोने दो। Let me sleep a little आपका more. मम्मी पापा बोलेंगे बेटा जल्दी उठो, पढ़ जाओ, पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, तो नहीं हाँ थोड़ा सोने दो। Your parents must have woken you up, get up now to study, and you might be saying, no, let me just sleep little more. ये एक बार याद रखो, सोने के समय में जो अनेक दिन सोना पड़ता है, Then you just need to remember that there is a time to sleep. At that time you need to बार sleep. बार समय वापस नहीं आता है। जो टाइम जो हो गया चला जाता है, वापस वो समय नहीं आ रहा है। You won't keep getting your time in the same way. The time that you have lost, you won't regain it. तो उस तरफ जो ये परमेश्वर क्या बता रहा है, अगर तुम इस तरफ से जो सही समय में जो तुमको जो परमेश्वर ने जो तुमको काम जो दिया, वो काम को छोड़ के अगर तुम सोते रहेंगे, नहीं तो नेग्लेक्ट करते रहेंगे, तब फ्यूचर में तुम्हारा जीवन नष्ट होता है। The word says that you need to work at the time that you need to work. You need to save your time and not waste it around, because the time that is lost, you won't get it back again. बस गया। So shall your poverty come on you like a prowler, and your need like an armed man. जब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। ये जो तुम्हारा जीवन नष्ट हो रहा है, कोई भी चीजों में कामयाब नहीं होगा। You will be everything will go under loss, and whatever you do will not be successful. अगर परमेश्वर का विश्वास ही है, परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर तुम विश्वास किए, तो क्या करना पड़ेगा? जो परमेश्वर के चरणों में बैठना है, जो परमेश्वर तुम्हारे जो भी काम जो दिया है, उसको सही सलामत काम करना है। If you believe in the Lord, what are you supposed to do? You need to spend time in the presence of God and do your work diligently. अगर तुम परमेश्वर को विश्वास करके अपने जो काम में करने समय में क्या होने वाला है, If you believe in the Lord and when you work diligently, what happens? हम वचन में पढ़ेंगे ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 28 वर्स 8। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। And the intricately woven band of the ephod, which is ड्यूटेरोनोमी 28:8। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। the Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. हालेलुया। अगर तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, वो वचन में जो लिखा है, तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, और तुम जो भी काम करते हैं, तुम्हारे क्षेत्र में छोटी धंधा करता है, छोटा काम करता है, कोई भी क्षेत्र में आप जॉब करते होंगे, लेकिन उधर परमेश्वर तुम्हें उच्च स्थान में लेके आएंगे। No matter where you are working, big job or small job, whatever area of your life, wherever you work, if you do it diligently, the Lord will bless the work of your hands. तो वचन में जो लिखा है, अगर तुम परमेश्वर को भय मान के अपने काम करने के समय में, परमेश्वर का आशीष तुम्हारे ऊपर आएगा। The word says that when you believe in the Lord and you do your work diligently, He will bless the work of your hands. ये वचन में जो लिखा है, तुम जो भी काम करते हो, हर कामों में परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। The word says that no matter what job you do, what work you do,
He will bless the work of your और जो hands. परमेश्वर जो जगह में तुम्हें लेके जाता है वो जगह में भी आशीष करेंगे। Whichever place the Lord takes you, even in that land, the Lord will bless you. बस 12 पढ़ेंगे। The Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना न पड़ेगा। परमेश्वर इस तरफ से आशीष करने वाला है। किस तरफ से आशीष करने वाला है? उसका कारण एक ही है, परमेश्वर को भय मांगे, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के समय में परमेश्वर इस तरफ से आशीष देने वाला है। When will God bless you in such a way? When you fear the Lord and you believe in the Lord and you work diligently. इसमें लिखा है आप तो बहुत बार बड़ा होंगे, लेकिन इसमें जो लिखा है, जो तुम्हारा हाथों से जो काम करते हैं वो काम को मैं आशीष करेंगे। You would have read such verses many times, but the word says that whatever you work, whatever you put your hands into, that will be blessed. जो बता रहा है सोचकर जो भंडार को खोल के तुम्हें आशीषों से भरेंगे और तुम दूसरे के भी आशीष बन के रहेंगे। The word says that He will open the heaven and bless you. तो तुमने दूसरे से उधार नहीं मांगेगे, तुम दूसरे को देंगे। You will not borrow, but you will lend. और परमेश्वर इस तरह आशीष करने वाला परमेश्वर है। He's such a God who will bless us. इसीलिए जो नीति वचन में जो 6 अध्याय में 9 में जो लिखा है वो मूंगी जैसे मतलब जो काम करना है, मेहनत करना है, हमें चुपचाप नहीं बैठना है। Just as what is written in Proverbs chapter 6 verse 9, to see how an ant would work without wasting its time. तो वो से क्या करना है? मेहनत करके जमा करते हैं। इस तरह अपने मेहनत करना है, अपने काम को ऊपर केयर करना है। The word tells us to learn from the ant about how hard working it is. आपको ये पता होना चाहिए, वो जन जॉब के लिए तड़प रहा है। You need to understand there are many people struggling to get a good job. जो आपको जो जॉब मिला, जो काम जो मिला है, वो काम में आप खुशी रहना, आगे बढ़ना, काम करना, सही करना है। Whatever you are working, whichever job you are working in, you need to work diligently and put all your efforts into it. अगर आप परमेश्वर को भय मान के अच्छी तरह काम करें तो परमेश्वर तुम्हें अच्छे पोजीशन में और उच्च स्थान में लेके जाएंगे। If you fear the Lord and work diligently, the Lord will bless the work of your hands. जीवन में नुकसान आए तो भी परमेश्वर तुम्हें ताकत देंगे। Even if there be losses in your life, the Lord will strengthen you. और हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो? परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें ध्यान रखना है, उससे भय मान के उनके खिलाफ कभी बात नहीं करना है। You need to believe in the word of God, fear the Lord, and never turn away from His और word. नीति वचन 29 अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। Proverbs chapter 29 verse 23. A man's pride will bring him low, but the humble in spirit will retain honor. मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाले महिमा का अधिकारी होता है। ये जो वचन में जो लिखा है, हमें घमंडी नहीं होना है। The word says that we shouldn't be proud. हमें अपने जीवन में आशीष मिलने के बाद प्रभु को ना भूलना है। After you are blessed, you shouldn't forget the Lord. परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो नम्र आत्मा वाला मतलब जो हमदर्द चाहिए, परमेश्वर से भय मांगे, उनसे हमें हमदर्द चाहिए, तब परमेश्वर तुम्हें उच्च स्थान में लेके जाएंगे। The word says that you need to be humble in spirit, and the Lord will bless you with honor. और परमेश्वर जो बता रहा है verse 25, The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान
ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर का बस जो भय मानता है उनको परमेश्वर उच्च स्थान में लेके जाने वाला है। Whoever fears the Lord will take him to higher positions. जो वर्ष 23 में जो लिखा है, जो व्यक्ति अपने आप को घमंडी समझता है उनको परमेश्वर नीचे फेंकने वाला है। Whoever is proud, the Lord will bring him low. जो इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो बात करता है आशीष देने वाला परमेश्वर है। The Lord who is talking to us today is a God who blesses you. और उसका आशीष हमें कंटिन्यू रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? But if you need to remain in His blessing, what are you supposed to do? परमेश्वर के सामने एक हम्बल चाहिए। You need to humble yourself before the Lord. क्योंकि और ये वचन में जो लिखा है, याकूब का किताब पढ़ेंगे, याकूब चैप्टर 4 और 6 वचन पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6। But He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud and gives grace to the humble. वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो परमेश्वर के खिलाफ जो कोई भी जो बोलता मैं ये सब कुछ है, मेरे कारण सब कुछ हो गया करके कोई इंसान अगर इस तरह बात करने से परमेश्वर उनके खिलाफ काम करने वाला है। Whoever is proud and is proud of whatever they do, they say that I did this, I did that, God will resist it. और परमेश्वर जो कहता है, जो व्यक्ति जो हम्बल जो है उनको ऊपर वो दया करने वाला है। And the word says that God shows grace to those who are humble. अगर आपको जीवन में परमेश्वर उच्च स्थान में लाना है तो आपको ये करना है। वर्ष 10 में जो लिखा है, If you want the Lord to raise you to higher positions, this is what the Lord says in verse 10. Humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. अगर हमें परमेश्वर सामने हमें नम्रता करना है, परमेश्वर तुम्हें उच्च स्थान में लेके आएगा। If you humble yourself in the presence of God, He will raise you to greater places. अगर आपको जीवन में आशीष नहीं आए तो अपने पीछे मुड़ के नहीं जाना है। If you did not receive blessings, you should not turn away from Him. परमेश्वर की बातों को उल्टा बात नहीं करना है। You shouldn't talk against the word of अगर God. आप आशीष पाने के समय में आशीष पाना चाहिए तो आपको जो विश्वासी बन गया उसी समय से कितने परमेश्वर के ऊपर भरोसा है उससे ज्यादा भरोसा होना चाहिए। If you were not blessed and then you need to trust God even more than what you did before. और परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लीजिए। जीवन में समस्या आए तो भी, तकलीफ आए तो भी आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे। You need to believe in the Lord even more, and even if you face challenges and trials, you need to still continue to believe in the Lord. परमेश्वर के ऊपर प्रेम कर लीजिए। Love the Lord. किस तरह से प्रेम करने वाला है? What kind of love? परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से परमेश्वर का प्रेम बनना है। You will love the Lord by obeying the word of God. अगर परमेश्वर तुम्हें उच्च स्थान में लेके जाएंगे, तुम्हारा जीवन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी तो हर प्रॉब्लम को दुकाने के लिए परमेश्वर तुम्हारे से बात कर रहे हैं अभी। Even if you are facing different challenges and problems, but if you trust in the Lord and believe in the Lord, He will strengthen you. हम भजन संगीता 55 अध्याय में 22 वचन पढ़ेंगे। Psalm chapter 55 verse 22। Cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है तुम्हारा बोझ को, तुम्हारी समस्या को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारा प्रॉब्लम को, हर चीजों को परमेश्वर के चरणों में रख दे। The word says, cast your burdens, your problems, your sufferings, your cares, everything at the feet of God. और इसी परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बताया, तुम्हारे जीवन में जो भी बोझ उठाने वाले, जो तकलीफ उठाने वाले, जो परिश्रम करने वाले, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम देंगे करके। That is why God says that all those who are heavy laden and are suffering and are burdened, come to me and I will give you rest. तो आपको जीवन में नष्ट होने के बाद पीछे मुड़ के नहीं जाना है। So if you face challenges and losses, don't turn away from God. परमेश्वर के लिए इंतजार करो। You need to wait on the Lord. उनका वचन के ऊपर
विश्वास करो। Trust in the word of God. और जो परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। He is a God who is a living God and his words are always true. हमें पीछे मुड़ के नहीं जाना है। You shouldn't turn away from him. जो वो जन पीछे मुड़ के जा रहा है, उस तरफ हमें नहीं जाना है। There are many who turn away from God, but you shouldn't replicate it. जो वचन में जो हम हिब्रू में जो पढ़ा था, जो परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र आत्मा जो दिया है, वो पवित्र आत्मा को संभाल के रखना है, अपने जीवन में सफलता होने वाला है। The word says that if you need to be blessed by the Lord, you need, and you have received the Holy Spirit, you need to take care and preserve it. परमेश्वर तुम्हें आशीष देने वाला है। God is ready to bless you. उनको पर विश्वास कर दीजिए, Believe in the Lord. उसको भय मान के, उनके डर के जीवन बिता लीजिए। Fear the Lord. अगर परमेश्वर डर के भय मान के जीने समय में परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जरूर कार्य करेगा। When you live a life a life out of the fear of God, He will bless you. और परमेश्वर जल्दी आने वाला है। God is coming soon. उसके लिए हमें तैयारी रहना We है, need to be prepared दूसरे को भी तैयार करना है, and prepare others. और हमारा एकदम इजीली हमारे जीवन को और पवित्र परमेश्वर साथ में खेलना नहीं। You shouldn't play casually with your life and the Holy God. परमेश्वर डर इसके लिए मांगना है, वो बड़ा परमेश्वर है, आकाश में बैठने वाला परमेश्वर है, इतने ऊंचा स्थान में बैठने वाला परमेश्वर है। उनके सामने हमें नम्रता करना है, उनके सामने हमें हम्बलनेस लेना है, अगर तब हम परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। When you seek the face of God, you need to believe in God and humble yourself before God, because He is seated in the thrones, the heavens, and so we need to humble ourselves. जो एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों का किताब, फिलिपियों चैप्टर 4, फिलिपियों का 4 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। We read from Philippians chapter 4, verse 13। हमारे मन में ये होना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहने सब कुछ मैं कर सकता हूँ। we need to always remember this word in your hearts. I can do all things through Christ who strengthens me. 13. 4:13. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। ये यीशु मसीह तुम्हें सामर्थ देंगे, सब कुछ तुम्हारे लिए करके देंगे और तुम कर पाओगे। God will strengthen you, and because of that you'll be able to accomplish anything. ये कोरोना जो लॉकडाउन समय में जो भी समस्या आता है, तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर के चरणों में बैठो, परमेश्वर को विश्वास करो, परमेश्वर में आशीष करेंगे। No matter what problems you come across, but believe in the Lord with all your heart and you will be blessed. परमेश्वर में आशीष दे। God bless you. हम एक प्रार्थना करेंगे। Let's close our eyes and do a short prayer. प्रभु परमेश्वर आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। Heavenly Father, we thank you. ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते We हैं, thank you for this beautiful आपको time. वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you for your word. प्रभु आपसे वचन के ऊपर विश्वास करके, आपको भय मान के, आपको साथ जीवन बिताने के लिए जो मांगता है, हर व्यक्ति को, हर भाई बहन को आशीष कर लीजिए। Lord, we pray that you bless all those who trust in you and are ready to live a life that pleases you. कोई भी व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं जाना है। Strengthen them that none of them will back. आपको आत्मा से इनको बल दीजिए प्रभु, Fill them with your Holy Spirit. और आपको नाम को महिमा के लिए इनको सहारा कर लीजिए प्रभु, Help them, Lord Jesus, in the और कोई name भी of, कमी कटी ना आने दो प्रभु। and let them never lack in आने वाले anything. दिनों में प्रभु आपको सामने खड़ा रहने के लिए सबको मदद कर दीजिए। Lord, let everybody be prepared to stand in your presence. जो आज जो सुनने वाले, जो देखने वाले, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सबको आशीष कर दीजिए। We pray for all those who have joined us, who are listening to us. You bless them. और प्रभु का आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए, महिमा करने के लिए आप सबको मौका दीजिए प्रभु। Lord, bless each one so that each of them will glorify your name. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Let's give the Lord a mighty clap offering. He is a good God and His love endures forever. We thank you for joining along with us. We pray that you are blessed through the word. And as we close the service, let's join along and look up to the Lord. प्रार्थना मेरे पीछे बनाइए। Hallelujah. तू मुझे सचमुच आशीष देता, तू मुझे सचमुच आशीष दे, मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता बुराई
बुराई से ऐसे बचा रखे कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। कि मैं पीड़ित न रहूं। आमेन। आशीष लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता और अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन। आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर यीशु को हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अलोंग। आज भी परमेश्वर ने हमसे वचन से बात किया है। कलीसिया के सभी मेंबर्स को और सभी को हम धन्यवाद कहते हैं कि आपने समय निकाला, ये पूरे सभा में बैठकर आपने परमेश्वर का वचन सुना, आराधना किया। हम विश्वास करते हैं पूरा हफ्ता आप सबके लिए आशीष का हफ्ता बनेगा। आमेन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अलोंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। यू कैन लाइक आवर चैनल द हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च। हमारा YouTube जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, द हार्ट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज, ताकि हमारा जो भी अपडेट्स है आपको मिले। आमेन। वी आर प्रेइंग फॉर यू ऑल। If at all you have any prayer requests and all, you can message us, you can DM us, or you can write in the comments. Pastor is always praying for you. कलीसिया होकर हम आप सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Amen. Thank you so much, and we request all the members to join in the Zoom meeting after the service. Thank you so much. God bless you all.